Good morning, good afternoon, and good evening, guys. So, wishing all of you a very happy belated Holi, and I hope all of you must have enjoyed the festival in its own limitations due to this COVID times. And I hope all of you and your family are safe. So, guys, let's take up one more case today. This is the third case of the new case series digest, and guys this is really very important case. तो आप बोलते रहोगे सर आप तो सब में important बोलते हो यार, ऐसा नहीं. But guys I believe that the concepts which are covered in this case are really important. They have covered standard costing in this case, they have covered budgetary control in this case, they have covered the concept of relevant cost in this case, and they have also covered learning curve in this case. So it's a mixed breed, and therefore it is really important. It is a kind of a mix of theoretical as well as a numerical case. So guys, there will be a bit of solving also. So I request all of you to also sit with their calculators when you are listening to my video. So let's start. Bhatia Motor Works, BMW. यार इंस्टीट्यूट ने देखो BMW को क्या किया है. Bhatia Motor Works is one of the renowned coach builders. That is a fabricator operating in North India with a mission to design and fabricate high quality buses which are innovative in style as well as engineering while maintaining standards of reliability. BMW has both local market as well as international markets. They have also said that human resource at BMW is highly skilled and well versed with the latest tools and techniques of production, and BMW itself is a very innovative company and they always keep on trying to improve their performance. So guys, जहाँ तक बात performance evaluation की है, they are very good. Now let us start evaluation. तो इन्होंने क्या बोला है, till date standard costing was used in BMW but only and only limited to the extent of calculation of variance. Guys, as you all know, standard costing is a technique by which we can calculate the variances, or people may also pronounce as variance, whatever you want to pronounce it as. Analysis and classification of variance was never performed. So guys, we have learned this in standard costing also, that only computation of variance is never relevant. What is very important is analysis of variance, and this is the difference between your IPCC or intermediate and final level. You have learned standard costing in IPCC also, but only from computational point of view. Material, labor, overhead variances as well as sales and profit. You learnt all this in IPCC, intermediate, but only from computational point of view. In final, it is really important to go through the analysis of the variance. But the newly appointed cost controller is highly motivated, and after his appointment, the budgetary system of BMW was revamped drastically as a part of the cost efficiency drive. Same was done to give best response to variance identified, if any. Not only this, but this cost controller is also showing interest in incorporating relevant costing. See here, he wants to incorporate relevant costing. मतलब आपको यहाँ से स्ट्राइक होना चाहिए कि बॉस ये केस स्टडी में 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आने वाला है, 2 बजटरी सिस्टम आने वाला है, 3 रेलेवेंट कॉस्ट आने वाला है, एंड 4 लर्निंग कब आने वाला है. I hope absolutely all these 4 words are really important and you must have noted it. With the help of management accountant, he is able to fetch the following data pertaining to different divisions. अब यहाँ से ये केस स्टडी न्यूमेरिकल की तरफ जा रही है. By the way guys, they have given the data about 2 divisions in this case study, fabrication division and painting division, right? So let us first talk about the fabrication division. Fabrication division में ये लोग 2 चीजें फैब्रिकेट करते हैं. एक है सीट हैंडल जिसका प्रोडक्ट कोड है BSH. SH is for seat handle, B is for the BMW, 101 is the product code, and seat cover B is again for the BMW,
सीट कवर का S और C और 102 उसका प्रोडक्ट कोड है विथ BMW लोगो इम्प्रिंट ऑन बोथ अपार्ट फ्रॉम फैब्रिकेशन। अब इन्होंने ये जो दो प्रोडक्ट है 101 और 102 उसके कुछ डिटेल्स आपको दिए हैं। हम इस डिटेल्स के तह तक जाएंगे। 101 को 6 घंटे लगते हैं। देखो अगर बॉस अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ गया ना तो समझ लो आपका केस एकदम क्लियर है। इसको 6 घंटे लगते हैं और 102 को 12 घंटे लगते हैं पर प्रोडक्ट। अब इन्होंने दिया है इन अ मंथ ऑफ 25 एक्चुअल वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स ईच। मतलब अब इन्होंने दिया है हमारे 25 वर्किंग डेज है और अब 8 घंटा काम करते हैं, मतलब हम महीने का 200 घंटा आउटपुट निकालते हैं। ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है। हम क्या बना रहे हैं, वॉट आर वी मेकिंग बाई वर्किंग दिस मच? वी आर मेकिंग 1200 यूनिट्स ऑफ 101 and 750 units of 102. And to do this guys, this company employs 75 men. So boss अगर मैं 75 आदमी को अपॉइंट करता हूं तो ये हो गए मेरे एक्चुअल आवर्स वर्क। वाओ, कैसे इजीली कर लिया मैंने भाई। 25 दिन हम एक्चुअल में काम करते हैं, 8 घंटे हम पर डे काम करते हैं, तो 200 घंटे हम एक महीने में काम करते हैं, इंटू 75 आदमी मेरे पास काम करते तो एक महीने में मैं 15,000 घंटे का काम कर लूंगा। एब्सोल्युटली इजी। अब प्रॉब्लम देखो ध्यान से। अब ये लोग बोल रहे हैं हम 1200 प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, वह प्रोड्यूस्ड मतलब ये मेड इट। सो 1200 के लिए वी मस्ट हैव टेकन 6 आवर्स। तो इसके लिए मेरे को लगे होंगे 1800 आवर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइस, लेट मी जस्ट इरेज इट and come back to this. So I must have taken 7,200 hours and 750 into 12 I have taken 9,000 hours. So technically इन दोनों का मिलके मुझे 16,200 घंटे, मैंने 16,200 घंटे का काम मैंने जल्दी कर लिया है। और कितने घंटे में कर लिया है बॉस? 15,000 घंटों में ही कर लिया है। क्या कंपेरेबल हो रहा है कि नहीं? अब आगे दोनों इन्होंने बोला बजटेड घंटे थे 1,86,000 पर एनम। नाउ दिस इज 1,86,000 पर एनम। उसको अगर मैं बजटेड मंथली लेके आऊंगा डिवाइड बाय 12 करके, तो इन शॉर्ट मेरा जो स्टैंडर्ड था वो था 15,500 आवर्स का। मतलब भाई बजटेड स्टैंडर्ड वाज टू वर्क फॉर 15,500 आवर्स, बट मैंने सिर्फ 15,000 घंटे ही काम किया है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मैंने बजटेड आवर्स से कम काम किया है, पर कम काम करके भी मैंने 16,200 घंटे का काम 15,000 में कर दिया। बॉस ये लाइन जिसको समझ गया ना तो आपको समझो आपको केस समझ गया। मैं वापस बोल रहा हूं, टारगेट था कि आपको 15,500 घंटे काम करना था, आपने 15,000 घंटे काम किया है, पर 15,000 घंटों में आपने 16,200 घंटों का काम किया है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये समझ गया ना ये पढ़ के, तो आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। सी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइस, जब हम क्वेश्चन पढ़े ना तो हमें क्या क्या चीजें क्लिक होनी चाहिए, राइट? सो गाइस आगे पढ़ते हैं। हमने सोचा था हम 26 दिन काम करेंगे, बट ब्रेकडाउन की वजह से हमसे 25 दिन ही काम कर पाए। माने हम एक दिन एक्स्ट्रा काम करने वाले थे, वो हम नहीं कर पाए। ओके, सो कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। अगर कर लेते तो क्या होता? कर लेते तो होता 26 इंटू 8 इंटू 75, वही होता ना। तो हम 15,600 घंटे काम कर लेते, बट वी कुड नॉट डू। तो कैलेंडर वरायंस में काम आएगा ये, ठीक है? याद है ना आपको, कैलेंडर वरायंस, डे का वरायंस होता है। आगे देखते हैं। ये था पहला डिवीजन। हम तो अब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं गाइस, अब तक सोल्यूशन तो शुरू भी नहीं किया है। पेंटिंग डिवीजन। द बजट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर पेंटिंग डिवीजन बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर। और उन्होंने अज्यूम किया था कि पेंटिंग डिवीजन जो है उसमें वर्कर का लर्निंग कर्व इफेक्ट मिलेगा 95% पे। बट वी नो एंड इट इज गिवन टू अस इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द केस स्टडी दैट BMW के वर्कर्स स्किल्ड है, प्लस उनको अपना पूरा टास्क मालूम है,
इसलिए उन्होंने बोला है मैनेजर को कि बॉस 95 का लर्निंग कर्व तो नहीं मिलेगा, हमें 90 का लर्निंग कर्व मिलेगा। वाओ, वर्कर्स खुद आके बोल रहे हैं कि हम बॉस 90% लर्निंग कर्व का आपको बेनिफिट देंगे। लर्निंग का इंडेक्स आपको दिया है ताकि आपको कैलकुलेट करने में इजी रहे। Since BMW also believes in participatory budgeting, it means they are listening to their workers. They are incorporating their views in making the budget. तो इन्होंने पूरा बजट रिवाइज कर दिया 90% लर्निंग कर्व के हिसाब से। अब इन्होंने बोला है एवरी मंथ हम 15 बस रेडी करेंगे आफ्टर पेंटिंग एंड फैब्रिकेशन। पहली बस को 20 घंटे लगेंगे पेंट करने के लिए, और उन्होंने बोला है 6th यूनिट के बाद लर्निंग कर्व का फायदा आपको नहीं मिलेगा। लर्निंग कर्व इफेक्ट विल बी ओनली टिल 6th यूनिट। इन्होंने लॉक और एंटी लॉक टेबल्स दिए और अब आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू हैव रेड द केस विथ मी, राइट? एंड अब हम आएंगे, हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब ये लोग पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज फेवरेबल वेरिएंस बीइंग कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एफिशिएंसी और investigation is essential, illustrate. Now let me come to the first question. You listen to my explanation, then we will read from here. See guys, variance can either be favorable or adverse. All of you know this. उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर अगर वेरिएंस फेवरेबल है तो क्यों फेवरेबल है, और अगर एडवर्स है तो क्यों एडवर्स है। क्या हमें ये एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं? यस, वी शुड डू इट। सो सिर्फ फेवरेबल आके अगर हमने छोड़ दिया या एडवर्स आके हमने छोड़ दिया, सो वी आर लीविंग द टास्क इनकम्प्लीट। वी हैव टू गो टू द ग्रास रूट लेवल, व्हाई इट इज फेवरेबल और एडवर्स। पॉइंट 1। पॉइंट 2, लेट्स टॉक अबाउट दैट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला वेरिएंस सबसे सिंपल वाला MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मान लेते हैं आपका फेवरेबल आया, तो आपको पता है ना व्हाई डज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज फेवरेबल और एडवर्स? Because it is due to material price variance and material usage variance. So cost के दो कंपोनेंट होते हैं, प्राइस, यूजेज। तो अगर कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल या एडवर्स आता है तो उसका रीजन या तो प्राइस में होता है या तो उसके कंजम्पशन में होता है। वैसे ही अगर वो फेवरेबल है तो भी देखना है कि भाई प्राइस की वजह से फेवरेबल हुआ है कि यूजेज की वजह से फेवरेबल हुआ है। हो सकता है कि एक की वजह से फेवरेबल हुआ हो, एक की वजह से एडवर्स हुआ हो, बट फेवरेबल इंपैक्ट इज मोर देन द एडवर्स इंपैक्ट, देयरफॉर फाइनल में मुझे फेवरेबल आ रहा है। सो द रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। दैट इज व्हाट नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन इट लाइक दिस। वी ऑल नो दैट ओनली कंप्यूटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, it is not a conclusive sign. Okay, they are indicators, but you have to go to the root cause. As I told you, variance are composites. Say material cost is comprising of what? Price, usage. Now material price variance is not in my control because price is not decided by me. I am a price taker, not a price maker. Usage is in my control. Usage किससे बनता है? Mix और yield. सो बॉस ये सब कंपोजिट नेचर है, तो इनको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और एक एक एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते, सिर्फ एमसीवी निकाल देते और आगे के वेरिएंस निकालते ही नहीं। ये तो नहीं हो सकता है। सो इवन फेवरेबल आए तो भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है। एज आई जस्ट टोल्ड यू, आई गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज आपको रॉ मटेरियल मिल गए, सस्ते में मिल गए, पर अगर उसकी क्वालिटी खराब थी तो उसमें कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। सो प्राइस में आप फेवरेबल हो गए पर कंजम्पशन में आप नॉन फेवरेबल या एडवर्स हो गए, बट ओवरऑल इंपैक्ट फेवरेबल भी आया तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड योर क्वालिटी। एंड एज दिस केस स्टडी हैज ऑलरेडी सेड दैट BMW believes in quality, and therefore here comes the conclusion guys कि बॉस फेवरेबल भी आएगा तो एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। सो आई होप फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई मूव ऑन टू माय सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऑफ द केस इज एक्सप्लेन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। नाउ गाइस, बिफोर आई गो टू प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, लेट यू जस्ट लिसन टू दिस गाइस। प्लानिंग की जब बात आती है ना,
प्लानिंग की जब बात आती है तो एक होता है प्लानिंग जो मैं करता हूं एक स्टैंडर्ड बना के, और एक होता है जब मैं वो स्टैंडर्ड बनाता हूं ना तो मुझे लगता है नहीं नहीं यार ये स्टैंडर्ड तो फॉलो नहीं हो पाएगा, सो व्हाट आई डू इज आई रिवाइज माय स्टैंडर्ड. अब द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड रिवाइज स्टैंडर्ड इज माय प्लानिंग वेरिएंस. लेट मी टेल यू यार बॉस, आई एम इन सीए फाइनल. मैंने एक जगह ऐसे ही ब्लॉग पे किसी से पूछ लिया, अरे कितने घंटे पढ़ना चाहिए सीए फाइनल में? किसी ने मुझे बोला 18 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए. मैं भी नेक्स्ट डे कमिटेड हो गया, 18 घंटे तो पढ़ ही डालूंगा. अब मैं जेन्युइन 18 घंटे बैठा, पर मैंने देखा मैं 18 घंटे नहीं पढ़ सकता यार, आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप. तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू 18 घंटे नहीं पढ़ सकता तो भी तू सीए तो बन सकता है ना. तो मैंने कोशिश की, मेरे को मालूम पड़ा मैं मैक्सिमम 14 घंटे पढ़ सकता हूं. पहले दिन में समझ गया मैं कि मैं 18 घंटे वाला टाइप वाला बंदा नहीं हूं. तो मैंने पहले 18 घंटे के हिसाब से मेरा टाइम टेबल बनाया. फिर मैंने समझ आया कि भाई 18 घंटे तो अपने बस की बात नहीं है, तो मैंने 14 घंटे के हिसाब से मेरा टाइम टेबल बनाया. तो आपको क्या लगता है मेरा टाइम टेबल के हिसाब से अगर मैं 18 घंटे का टाइम टेबल बनाऊं पर डे पढ़ाई का और 14 घंटे का टाइम टेबल बनाऊं पर डे पढ़ाई का, तो क्या मेरा कंप्लीशन डे ऑफ द सब्जेक्ट विल बी द सेम? क्या मेरा सब्जेक्ट सेम डे कंप्लीट होगा? ऑब्वियसली नहीं, मेरे कुछ दिन मेरा टाइम टेबल आगे बढ़ेगा. तो ये जो डिफरेंस है ना, ये मेरा प्लानिंग वेरिएंस है. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ द वर्ड प्लानिंग वेरिएंस. दूसरा होता है ऑपरेशनल वेरिएंस. नोटिस ऑपरेशनल वेरिएंस, अब 14 घंटे तो पक्का है पढ़ना है ना. अब कल होली थी, यार दोस्त आ गए घर पे, बोले यार होली तो खेलनी है, उठा के जबरदस्ती ले गए नीचे, बोले थोड़ा जाके आते हैं, यार दोस्तों से मिल के आते हैं, कलर वलर थोड़ा खेल लेंगे. अब उस दिन ये हुआ कि कलर के मूड में आ गया थोड़ा मैं, तो 2 घंटा तो मैं नीचे था और घर पे आके भी वो जोन नहीं आया पढ़ने का. 4 घंटे वेस्ट हो गए टोटल मिला के. तो अब 4 घंटे 14 घंटे में से जो कम होंगे वो मेरा ऑपरेशनल वेरिएंस है. आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर गाइस कि 18 घंटे का टाइम टेबल और 14 घंटे के टाइम टेबल में जो फर्क है वो प्लानिंग की वजह से है, और 14 और 10 के बीच में जो फर्क है वो ऑपरेशनल वेरिएंस है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस. प्लानिंग, दिस अराइजेस ड्यू टू रिविजन ऑफ स्टैंडर्ड्स. अगर प्लानिंग वेरिएंस कंप्यूट करना है तो आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, माने 18 घंटे और 14 घंटे, राइट? इसको बोलते हैं प्लानिंग वेरिएंस. और ऑपरेशनल रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ माने 14 घंटों के साथ आपके होली के दिन के 10 घंटे की पढ़ाई को कंपेयर कर लो. ये हो गया ऑपरेशनल वेरिएंस. एंड विद दिस गाइस आई फिनिश्ड माय सेकंड पार्ट ऑफ द केस. आई होप all of you are getting very clear with this. Third part of the case, standard cost used for variance analysis is not always relevant. Explain the importance of relevant cost while determining standard cost for variance. Oh wow boss, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट मुझे आज नहीं, ये जब मैं खुद सीए कर रहा था ना, when I was doing my CA way back in 99-2000, राइट, मतलब 20-22-21 साल पहले, तब मुझे ऐसा लगता था कि यार हम ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जहाँ पे वो स्टैंडर्ड प्राइस लेते ना कहीं कुछ गलत करते हैं, हम एक्यूरेट रिजल्ट पे नहीं पहुंचते. मैं आपको एक सही एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा. हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं आपको पता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, हम ये करते हैं सबके सब लोग, है ना, कि हमारी इतनी क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए थी, एक्चुअल में इतनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई, उसका जो वेरिएंस है डिफरेंस है उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते. अब ये थर्ड पॉइंट आपको क्या पूछ रहा है मालूम है? क्या ये स्टैंडर्ड प्राइस ही होना चाहिए क्या? अब आप अपने आप से सवाल पूछो, वो स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जो बुक्स में होता है, वो प्राइस जो हिस्टोरिकल होता है? क्या ये प्राइस जेन्युइन आपको आंसर देने वाला है? नो, मुझे लगता है ये स्टैंडर्ड प्राइस की जगह मुझे रहना चाहिए मेरा रेलेवेंट कॉस्ट, जो मेरा रेलेवेंस है. सी स्टैंडर्ड इज नॉट रेलेवेंट अगर वो मटेरियल स्कैर्स में है. बॉस हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग में क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई रॉ मटेरियल स्कैर्स में है तो मैं उस स्कैर्स को ये कोशिश करूंगा कि ऐसे यूज करूं कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. और अगर मैं उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया होता है मुझे,
याद आया आपको वो रेलेवेंट कॉस्ट का मस्त क्वेश्चन हमने किया है कि बॉस हमें उसका सेल वैल्यू दिया होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया होता है, तो हमें पूछा जाता है कि बताओ बताओ आप रेलेवेंट कॉस्ट क्या लोगे। तो अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेते हैं बॉस कि उसको मैं अगर रिप्लेनिश करूंगा तो आज किस भाव पे करूंगा वो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको यूज कर लूंगा तो क्या मुझे स्टैंडर्ड प्राइस से दूसरा मटेरियल मिलने वाला है क्या? नको। तो व्हाई शुड आई टेक स्टैंडर्ड प्राइस? आई शुड टेक माय रेलेवेंट प्राइस। एंड देयरफॉर बॉस आई ऑलवेज बिलीव दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हम करते हैं, और अगर हम यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं तो हम कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट्स पे नहीं पहुंच सकते हैं। दैट इज द लॉजिक ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कि जब मैं प्राइस उठा रहा हूं, मान लो ये रिमोट है ना, ये रिमोट है, ये स्केर्स है, बाजार में नहीं है इसकी सप्लाई, मेरे पास पड़ा है स्टॉक में, पर इसकी सप्लाई नहीं है। मैंने जब अगर मैं लेने जाऊंगा तो मेरे को ब्लैक में भी लेना पड़ सकता है। तो जब मैं इसको यूज करूंगा तो मैं इसकी स्टैंडर्ड प्राइस पे करूंगा कि रेलेवेंट कॉस्ट पे करूंगा? बॉस रेलेवेंट कॉस्ट पे करूंगा, क्योंकि अगर मैं आज इसको स्टैंडर्ड प्राइस पे करके मैं वेरिएंस पॉजिटिव लेके भी आऊंगा, पर जब ये रिमोट मुझे वापस रिप्लेनिश करना पड़ेगा तब तो ब्लैक में लेना पड़ेगा ना मेरे भैया, उसका डिफरेंस कहां जाएगा? सो यू हैव टू टेक रेलेवेंट कॉस्ट। And here guys I would like to explain you from here now what institute has given. Here it is. Traditional standard costing is based on standard price, that is acquisition cost, but it is misleading because ये जो मेरा एग्जाम्पल है कि resources are scarce in nature, then उसकी वजह से आपका कंट्रीब्यूशन भी जाएगा और परचेस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। एंड देयरफॉर इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट कॉस्टिंग देन यू कैन डू इट फॉर ऑल द स्कैर्स रिसोर्सेज और बॉटलनेक रिसोर्सेज, एंड देयरफॉर योर फॉर्मूला शुड बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू द रेलेवेंट प्राइस, not the standard price. I hope all of you have now understood the logic of the third part of this case. तो अगर आपने ये केस मेरे से सुना होगा ना गाइस, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत इजी था, लॉजिक भी समझ में आ रहा है। जब हम खुद से पढ़ते तो हमको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत जबरदस्त, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आता, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के भीतर नहीं जाते, वी डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट। Largely, the standard yardsticks are yardsticks in static in nature, and I truly believe, I just told you that standard जो हम बनाते हैं ना बॉस, और एक बार यार्डस्टिक जो बनाते हैं, बेंचमार्क जो बनाते हैं, ये बड़ा स्टैटिक होता है, डायनामिक नहीं होता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है ना। कभी लेबर शॉर्टेज होता है, कभी मटेरियल शॉर्टेज होता है, तो बॉस स्टैंडर्ड भी तो रिवाइज होना चाहिए। वैसे ही लर्निंग कर्व के वजह से भी तो स्टैंडर्ड रिवाइज होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं, अब यहां पे सवाल क्या उठता है मालूम है बॉस, आपको पता है ना कि लर्निंग कर्व मिलने वाला है, सच सच बोलो बॉस, डे वन से मालूम है ना लर्निंग कर्व मिलने वाला है, यस और नो? आपको डे वन से मालूम है ना लर्निंग कर्व मिलने वाला है, तो गधो मैं ये बोल रहा हूं, बजट बनाने के पहले अगर हम पहले से लर्निंग का इफेक्ट डाल दे तो हमारा स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट होगा। सो इफ यू वांट टू एक्चुअली मेक एन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड, व्हाई नॉट इनकॉर्पोरेट लर्निंग का इफेक्ट व्हाइल मेकिंग द बजट? क्यों तुम ऐसा करते हो, पहले बजट बनाते हो फिर बोलते हो नहीं नहीं अब तो लर्निंग का मिलेगा ना, तो फिर उसको रिवाइज करते हो? यार पोपट है यार ये, पहले बजट बनाया फिर लर्निंग कर्व को इनकॉर्पोरेट करके एक और रिवाइज्ड बजट बना दिया। अरे बॉस तो सीधा रिवाइज्ड बजट ही बनाओ ना, तुम्हें जब पता ही है लर्निंग कर्व मिलना है तो। इन्होंने बोला है ना, दे आर यूजिंग पार्टिसिपेटिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम। पार्टिसिपेटिव मतलब दे आर लिस्निंग टू द वर्कर, तो वर्कर आके तुमको बता रहे हैं ना कि बॉस मैं 90% लर्निंग कर्व दूंगा, तो बनाओ ना वहीं से, एंड जो लर्निंग कर्व के बाद का बजट बनता है उसके साथ एक्चुअल को कंपेयर करो, देन ओनली यू विल गेट द राइट variance. And that is what guys is explained in point number 4. Boss, we all know what is learning curve. It recognizes the potential of the people. It presumes that more and more you work, more and more quick you become, but only to a certain extent, right?
सो अगर आप लर्निंग कर्व को पहले से नहीं डालते हैं तो वो आउटडेटेड है, मीनिंगलेस है. सो यू नीड टू एकोमोडेट all the rapid changes in the standard costing, and even the effect of learning curve should be embedded. Embedded means incorporated in the standard, which I told you. So अगर आप पहले से ही मटेरियल में आपको प्राइस का एडवांटेज मिलने वाला है, स्टैंडर्ड में इनकॉर्पोरेट कर दो. मटेरियल शॉर्टेज में रेलेवेंट कॉस्ट पे लेना पड़ेगा, रेलेवेंट कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट कर दो. At least your setting of standard will become much better and people will trust your standard. So standard costing itself is a very traditional historical technique, but you should know how to modify it for your betterment. Right? That's all, guys. That was point number 4. I hope all of you must have understood the logics with which I am giving you the replies and the answers of this case. Coming to the guys fifth one, compute revised budgeted labor hours for management accountant incorporating in learning curve. So guys, ये तो बहुत सिंपल है, ये आप लोग सबको आता है. मैं ज़्यादा तो इसमें बोलूँगा नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी पार्ट है और ये बहुत सिंपल सम है. लर्निंग कर्व में हम इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सम्स करते हैं. So guys, you all know learning curve is a geometric progression given by y is equal to a into x raised to b, where y is the cumulative average time per batch, a is the time taken for the first activity or the first quantity, x is the cumulative units of production जहाँ तक आपको ये effect मिलने वाला है, and b is the learning index coefficient. Guys, as if you want to find time required for painting 6 buses, so you will do is 20, that is first bus को 20 घंटे लगते हैं, into 6 raised to minus 0.152 is also given in the question. I hope all of you know this. log table apply करना है, right? log table apply करके log के value substitute करने, final answer जो आएगा anti log apply करना है and you will get the answer. Numericals मुझे पता है आपको आता है, तो I don't want to waste your time into that. So first 6 बस के लिए अपने को कितना लगेगा, 15.23 into 6 buses is 91.38. बट 6 यूनिट के बाद तो आपको लर्निंग कर्व नहीं मिलने वाला है ना, नहीं मिलने वाला है ना, कोई बात नहीं. तो पहले 5 बसेस का देख लेते हैं. तो 20 इंटू 5 रेज टू 0.152 एंड ये सेम तरीके से आएगा. एंड यू कम टू नो दैट फॉर द फर्स्ट 5 बसेस इट इज 15.66 आवर्स. सो 5 बसेस का इंटू 15.66 विल गिव यू 78.3 आवर्स. नाउ आपको मिला है 91.38 एंड 78.3, दोनों का डिफरेंस है 6th यूनिट का आंसर विच इज 13.08. सो गाइस, आपका पहला 5 बस तो 78.3 में बनेगा और अगला 10 बस आपका बनेगा 13.08 पे. टोटल करोगे तो आपको टोटल 15 बस का पेंटिंग का टाइम मिल जाएगा, विच इज वेरी सिंपल. एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था. एंड लास्ट इज द कंट्रोल रेशियोज, एंड कंट्रोल रेशियोज का कैलकुलेशन मैं आपको स्टार्टिंग में करके दिखा चुका हूं. गाइज, ये रहा मेरा क्वेश्चन. उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा, इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट द कंट्रोल रेशियोज. मैं यहां दिखाना चाहता हूं आपको जो मैंने आपको करके दिखाया. मैंने स्टैंडर्ड बनाया था कि हम 15,500 घंटे काम करेंगे, बट हमारा काम जो था वो ही था 16,200 घंटे का. सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू is the first activity ratio is the activity ratio is nothing but standard hours for actual production upon budgeted hours. तो tell me, आपको actual production के लिए कितने घंटे लगने वाले थे? 16,200. बट आपके पास बजट ही कितने का था? तो इनके हिसाब से तो आपकी एक्टिविटी ज्यादा देके रखी थी आपको, राइट? दे हैड गिवन यू मोर एक्टिविटी देन व्हाट यू वर सपोज टू डू. ओके, कमिंग टू कैपेसिटी. कैपेसिटी के लिए आई वुड लाइक टू टेक यू टू द टॉप. एंड इफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड हियर, मैंने 15,500 घंटे काम करना था, बट रियल में मैंने सिर्फ 15,000 घंटे काम किया क्योंकि मेरा एक दिन का लॉस हुआ था. हमको याद है ये बात. सो मेरी कैपेसिटी इज व्हाट? 15,500 डिवाइड बाय 15,600, सॉरी 15,000 अपॉन 15,500
into 100 and I worked at my 96.77% capacity, तो भी मेरी 3.23% अनयूटिलाइज्ड रह गई ड्यू टू ब्रेकडाउन. कोई बात नहीं. थर्ड इज कैलेंडर रेशियो. I just told you we were supposed to work for 26 days. We worked only for 25 days. So boss, actual upon the standard days into 100 will give you हम कितने days कम काम किए. And last is my efficiency. ये तो मैंने ही आपको बताया. हमने 15,000 घंटों में 16,200 घंटों वाला काम किया है बॉस. तो हमारी एफिशिएंसी ज्यादा ही होगी. So actual output 16,200, standard was 15,000 into 100. You worked at 108% कैपेसिटी बॉस. आपकी एफिशिएंसी एक नंबर थी. और उसके नीचे इन्होंने वर्किंग नोट्स दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दे दिए हैं इन द क्वेश्चन ओनली. सो गाइस, हियर आई फिनिश माय एक्सप्लेनेशन टू द थर्ड केस एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली वेरी क्लियर विथ माय थर्ड केस. राइट? So this was the case of BMW, standard costing, budgetary control, relevant costing and learning curve all together guys was the third case. Was really one of the wonderful questions. I request all of you to see the whole video and practice along with me itself. That's all from my side for today. We'll see you again with the next case in a short while. Bye guys. Take care. God bless you and take care.